Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 16th May 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. Before we move on to the first article of the day, आज का जो डेट है 16th May, what is it celebrated as? तो आज का जो दिन है it is celebrated as International Day of Light. Okay, so इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं. What is the theme? Why is it celebrated? All of that we'll understand. Firstly, 16th May, remember, is the date इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, यानी कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं जो लाइट की टेक्नोलॉजीज हैं कि अगर हम लेजर्स की बात करें, वेरियस फील्ड्स में इसका इस्तेमाल होता है, लाइट का इस्तेमाल होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट, कल्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हेन यू टॉक अबाउट सोलर एनर्जी, लाइट, सो एवरीथिंग दैट इज लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज, इसका अवेयरनेस क्रिएट करते हैं आज के दिन. एंड व्हाई डिड वी सिलेक्ट 16th May only? That is because the first successful operation of the laser happened on 16th May 1960 में. And किसने ये किया? It was done by a physicist called as Theodore Maiman. ठीक है, तो इनके अचीवमेंट की वजह से आज का जो दिन है हम सेलिब्रेट करते हैं. The theme of this date is Light Innovation Society. Light Innovation Society, and we have seen 2015 में we had dedicated, the UN had dedicated the year 2015 as International Year of Light and Light Based Technology. यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि इस साल यानी कि 2025 what has UN declared? What is the UN declared year for the year 2025? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Let's now proceed to our first article, and when we talk about the first article, this is going to be a merger of various articles with regard to the recent update between India and the warlike situation with Pakistan. क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसका quickly एक update देखते हैं. So before we move on to the update, a little of summary, a recap. Operation Sindoor के बारे में. तो Operation Sindoor was launched by India on May 7 to give a response to the Pahalgam terror attack which took place on 22nd April 2025. यहाँ पे हम देखते हैं पहलगाम टेरर अटैक में 26 civilians lost their lives in a tourist place called as the Besran Valley of the Pahalgam region. And we see हमने ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए लॉन्च किया था, and we targeted 9 such terror camps, terror facilities in the Pakistan and Pakistan occupied Kashmir या the POK region. इन फैसिलिटीज में हम देखते हैं कि टेररिस्ट के ट्रेनिंग होते थे. These were the centers where they used to brainwash people into terrorism. यहाँ पे हम देखते हैं कि recently a military exchange that lasted until May 10th, because इसके बाद हम देखते हैं the DGMO, which is the Director General Military Officer of Pakistan, इन्होंने इनिशिएट किया, was initiated by Pakistan to ask for a ceasefire. तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान agreed for a ceasefire on May 10th, right? But soon after it had stopped, but again now it has been, it will remain in effect till May 18th as claimed by Pakistan. तो ceasefire कब से कब तक होगा? May 10th से लेके May 18th तक. Now we also see हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने विजिट किया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. एंड यहाँ पे हम देखते हैं इनके इंटरैक्शंस हो रहे हैं विद रिगार्ड टू द ट्रूप्स एट श्रीनगर बदामी बाग कंटोनमेंट. एंड ये भी रिस्पॉन्स देते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है, इट शुड कम अंडर वॉच. व्हाट वॉच? इट शुड कम अंडर द सुपरविजन ऑफ एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड द IAEA. तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि न्यूक्लियर उनके जो भी मिलिट्री वेपन्स और सब है, इट शुड कम अंडर द वॉच ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जानकारी लेते हैं. IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो राजनाथ सिंह कहते हैं कि इनको सुपरवाइज करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द करंट न्यूक्लियर आर्सेनल वेपनरी ऑफ पाकिस्तान.
इनफैक्ट पाकिस्तान ये भी कहती है कि इंडिया इज ऑपरेटिंग अ ब्लैक मार्केट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, ये इलेजिटिमेट सप्लाई करती है, तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है। हमने यहाँ पे IAEA से मांग की है कि आप सुपरवाइज करो। तो IAEA जो है, इट इज द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट इंटरगवर्नमेंटल फोरम व्हेन इट कम्स in the field of nuclear, when it comes to the sector of nuclear field, right? तो यहाँ पे हम टेक्निकल कोऑपरेशन कर रहे हैं, साइंटिफिक कोऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि ये जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज हो। वी नो न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड बोथ इन सिविलियन एंड इन मिलिट्री यूज, right? It is used for generating energy, electricity, as well as it is used for destruction. तो इसका safe usage हो, ये IAEA चाहता है। It is widely known as World's Atom for Peace and Development Organization, and ये report करता है United Nations General Assembly as well as to the Security Council. इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया, एंड करंटली देयर आर 178 members including India. Let's now proceed to understanding the next article of the day, जो है with regard to हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, she has referred to the Supreme Court for certain advice. Okay, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल हम जानते हैं. What exactly has she asked for an advice with the Supreme Court? What is the procedure? Is the Supreme Court bound to give a reply? जो भी Supreme Court कहता है, is it binding on the president or the law? Let us all understand in this particular article. So यहाँ पे हम देखते हैं द्रौपदी मुर्मू ने कौन से आर्टिकल इन्वोक करके एडवाइस मांगा है. इट वाज आर्टिकल 143. तो आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से शी हैज सीक्ड सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन ऑन व्हाट केस, किस इशू पे उन्होंने ये मांगा है. इशू या कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन सेट किया था कि जब एक बिल एक्ट बनता है, हमको फाइनल एक प्रोसीजर क्या होता है? असेंट, राइट? तो बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट, द फाइनल स्टेप टू इट इज असेंट ऑफ whom? either the president or the governor. तो रिसेंटली हम देखते हैं कि तमिलनाडु में जो गवर्नर है RN रवि, इन्होंने क्या किया? असेंट को विदहोल्ड कर दिया. जो भी बिल्स तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने पास किए थे, RN रवि ने इनको विदहोल्ड किया था. तो इससे लेके मतलब उन्होंने कुछ एक्टिविटी नहीं की थी, इट हैड केप्ट ऑन होल्ड. सो बहुत देर तक इन्होंने ये किया, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक्शन लेके अंडर 142, ताकि वो कंप्लीट जस्टिस ग्रांट करे, इन्होंने कहा कि जो भी बिल्स इन्होंने विदहोल्ड किए वो डीम्ड टू बी पास है, वो पास हो गए. और उन्होंने आगे जाके टाइमलाइन भी सेट किया कि जो भी बिल्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेके आते हैं आपको, यू हैव टू do some action on the bills, either pass करो, either reserve करो, पर तुमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. You can't just not do anything, you cannot just have an inaction done. तो इसीलिए इन्होंने 3 मंथ का डेडलाइन सेट किया. किसने? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक सेट किया कि जो भी गवर्नर बिल लेके आते हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट विल हैव 3 months to act upon it. राइट, ये खुद से उन्होंने एक टाइमलाइन यहाँ पे सेट कर दिया. एंड वी ऑल्सो सी उन्होंने तमिलनाडु गवर्नर का भी जो रूलिंग है ये ओवरटर्न कर दिया. So in that case, let us now see what exactly are the constitutional provisions regarding this. तो प्रेसिडेंट्स जो रेफरेंस है कौन से आर्टिकल में हमने देखा? यस, आर्टिकल 143, जहां पे प्रेसिडेंट जहां पे प्रेसिडेंट मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, कुछ रेफर कर सकता है कुछ क्वेश्चंस ऑफ लॉ और क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट. ओके, विद रिगार्ड टू एनी सच एडवाइसेस इट रिक्वायर्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, क्या ये बाइंडिंग है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज एडवाइजरी. एडवाइजरी का मतलब है ये बाइंडिंग नहीं है. एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस बैठ के डिस्कस करते हैं ये मैटर? द आंसर इज 5 जज बेंच. तो 5 जज बेंच का एक रिक्वायरमेंट होता है एज पर गिवन इन आर्टिकल 145 कि तुमको यहाँ पे ये केस सुनना है एंड यू नीड टू रिटर्न विद द मेजॉरिटी ओपिनियन, मेजॉरिटी व्यू.
ये जो प्रोविजन है 143 का, इट इज रेयरली यूज्ड, ओके, इट इज सो फार हम देखते हैं 15 टाइम्स बस ये यूज किया गया है फ्रॉम और सिंस 1950. सो इट्स अ वेरी लेस यूज्ड प्रोविजन आर्टिकल, दैट इज 143. नाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट से कि मुझे यहां पे जवाब नहीं देना प्रेसिडेंट को? द आंसर इज yes. The Supreme Court can decline to respond. यहाँ पे it is necessary to know 143 में word लिखा है may, right? May give that is giving the Supreme Court the discretion to respond. लेकिन कुछ cases में it is a compulsion to reply, which is those cases when it comes to constitutional cases. Okay, constitutional या pre-constitutional agreements की अगर हम बात करें, then it has to give a response to the president. So yes, otherwise it can decline, and ऐसे decline किया भी है सुप्रीम कोर्ट ने, like we see in 1993 when we were talking about the राम जन्मभूमि या the बाबरी मस्जिद dispute के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया था, रिप्लाई नहीं किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट 1982 में भी ये डिक्लाइन किया है विद रिगार्ड टू जम्मू कश्मीर में जो रिसेटलमेंट ऑफ माइग्रेंट्स के इशू के बारे में था, तो उसमें they didn't want to be dragged into the issue, so therefore they declined. So these are the cases that we see that Supreme Court can decline as well. Does not have to be binding unless it's with regard to some constitutionally treaties or pre-constitutional agreements. Let's understand now. Can the Supreme Court overturn its April 8? जो भी April 8 ruling में उन्होंने कहा कि डेडलाइन और सब है, क्या ये चेंज हो सकता है? The answer is no. जो आर्टिकल 143 है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं बताता कि तुमको जो भी तुमने कहा है तुमने चेंज, अनलेस देयर इज अ पिटिशन और अ रिव्यू फाइल्ड वंस अगेन. ठीक है, ये जो एडवाइस है बस एडवाइस के फॉर्मेट में है. इट इज नॉट नेसेसरी इट विल चेंज व्हाट हैज हैपेंड अनलेस देयर इज अ पिटिशन कमिंग वंस अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट. क्लियर? सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया है कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये अपील के तौर पे रिविजिट सेटलमेंट जस्टिस जजमेंट्स ये सब नहीं हो सकता. फर्दर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में हम देखते हैं इट इज नॉट द ओनली केस. इससे अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं. कितने क्वेश्चंस? 14 क्वेश्चंस ऑफ लॉ. वी अंडरस्टैंड कि रेफरेंस करते समय यू कैन ईदर आस्क अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एंड यहाँ पे पूछा गया है 14 सच क्वेश्चंस, नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिकली टू April 8 वाला रूलिंग, बट इवन जनरली. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है विद रिगार्ड टू शुड ओनली लार्जर बेंच डिसाइड सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन पूछा है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ आर्टिकल 142, जहां पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है टू एन एग्जीक्यूटिव टू डू द ड्यूटी सो दैट कंप्लीट जस्टिस में बी प्रोवाइडेड. तो ये जो 142 यही इन्वोक किया गया था फॉर द केस ऑफ द April 8 रूलिंग. इसके अलावा कैन कोर्ट्स हियर सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, या ये एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पावर में ही आता है. ऐसे सब क्वेश्चंस भी द्रौपदी मुर्मू ने रेफरेंस में पूछा है किसको? सुप्रीम कोर्ट को. सो नाउ वी विल सी व्हाई हैव वी सीन सच एन इंसिडेंट, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट और अ बैक स्टोरी. यहाँ पे वी यूजुअली सी सच एन इंस्टेंस व्हेन ऑपोजिशन में ऑपोजिशन रूल स्टेट्स, यानी कि जैसे सेंटर में यू हैव बीजेपी पार्टी, whereas there are some states that are the non-majority party says that is not from BJP, right? जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, we talk about केरला, so यहाँ पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट का रूल नहीं है, बीजेपी का रूल नहीं है. तो ऐसे सब टेंशंस आप ज्यादा पाते हो when you talk about the opposition rule states. Clear? So governors, ये जो केसेस हम देखते हैं तमिलनाडु और केरला के बारे में, यहाँ पे we see these disputes arising and the governors that are appointed, यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है गवर्नर्स को? The president appoints, right? They work under the pleasure of the president. तो इसीलिए बहुत बार यहाँ पे conflict देखने को मिलता है because these governors they don't easily accept or give assent to the bills, and that is how these state center issues or tensions arise. सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है स्टेट्स को मैंडेमिस
ये रिट है, वी नो देयर आर 5 रिट्स, कैन यू प्लीज नेम ऑल द 5 रिट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे एक रिट के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, कॉल्ड एज द रिट ऑफ मैंडेमिस। तो सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द स्टेट्स टू सीक द मैंडेमिस रिट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट अगर वो इन एक्शन करता है या कोई एक्टिविटी नहीं करता, वो बिल को बस रखा है। सो दे कैन आस्क, मैंडेमिस में क्या होता है, यू आर आस्किंग देम टू डू देयर ड्यूटी, टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, राइट। सो मैंडेमिस का रिट अप्लाई कर सकते हैं हम इवन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, सो दैट यू टेल देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी। सो यहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया है इस बात को, किसने, वी हैव द अटॉर्नी जनरल जो है अभी आर वेंकट रमानी, इन्होंने आर्ग्यू किया कि प्रेसिडेंट वाज नॉट हर्ड बिफोर द जजमेंट, सो ही हैज हिज ओन इशू इन दैट कि प्रेसिडेंट को पहले रेफर करना चाहिए था बिफोर गिविंग सच अ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द April 8th रूलिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़, इन्होंने भी कहा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज एक्टिंग वे बियॉन्ड इट्स पावर्स, यानी कि वो ओवर रीच कर रहा है, राइट। इट इज इट इज ऑल्सो देयर आर कंसर्न्स ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी कि पार्लियामेंट को ये नीचे करके ज्यादा ये सुप्रीम बन रहा है। सो दैट इज व्हाट द वाइस प्रेसिडेंट हिमसेल्फ गिव सम व्यू ऑन दिस। सो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा जहां पे प्रेसिडेंट ने एडवाइस मांगा है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, अंडर विच आर्टिकल 143। Let us now proceed to the next article. Okay, before we go to the next article, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, how many times it has been invoked the 143 article? Around 15 times since 1950. तो यहाँ पे बस कुछ examples दिए हैं. What are these examples? Let's have a quick look. First is Kaveri Water Row, which is in 1991. We had the President R. Venkataraman. इन्होंने पूछा था, मांगा था with regard to Supreme Court कि क्या ट्रिब्यूनल या क्या कर्नाटका एंड तमिलनाडु के केस में बीच में था ये, और जहाँ पे तमिलनाडु ये जो कावेरी डिस्प्यूट वाली ट्रिब्यूनल है, इन्होंने कहा था कि कर्नाटका पानी रिलीज करे टू तमिलनाडु, जिसने कर्नाटका ने ओवरराइड किया था। सो इन दैट केस वी सी दैट द प्रेसिडेंट आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देन अनदर सेक्शन इज अयोध्या केस। सो अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस, जहां पे डिक्लाइन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया था टू गिव एनी इंफॉर्मेशन, राइट, टू गिव एनी एडवाइस। देन वी ऑल्सो हैव गुजरात इलेक्शन। यहाँ पे गुजरात इलेक्शन में वी हैड ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैड द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात वाज नरेंद्र मोदी, राइट। सो हियर वी सी APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने रेफर किया था मैटर टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, ओके, टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट, एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, इट हैज द पावर टू डू सो। देन द अदर केस दैट वी सॉ इज 2G टेलीकॉम लाइसेंसेस, तभी प्रेसिडेंट थी कौन, प्रतिभा पाटिल, ऑलराइट। सो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जवाब था कि whatever the government is doing it's fine, and in that case the just reference that we see. तो ऐसे cases हम देखते हैं with regard to how and what are the cases where president have referred to the Supreme Court. Let's now proceed to the next article. अगला जो article है is with regard to Article 21. तो क्या है ये article? Let's understand. Let's break this down into simple aspects. तो recently यानी कि April 30th को Supreme Court ने बोला है कि KYC norms जो है, you know what is KYC norms? KYC का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर्स। तो जब भी आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करते हो, यू नीड टू गिव वेरिफिकेशन ऑफ योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, तुमको वेरीफाई करना पड़ता है। सो इट्स बेसिकली अ सिस्टम और इट्स अ प्रोसीजर टू वेरीफाई द क्लाइंट और टू वेरीफाई द कस्टमर। And why do they do that? They do that because to ensure कि कोई ये जो इंसान है कोई मनी लॉन्ड्रिंग या ये जो बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, राइट। सो इसीलिए नो योर कस्टमर यूज किया जाता है मेनली इन द फाइनेंशियल सेक्टर, इन द बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि KYC नॉर्म्स को और भी इजी बनाना चाहिए, स्पेशली फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। Okay, so what happens in KYC? आपको you require to sign, digital sign करना चाहिए, you need to give जैसे कैप्चा होता है, but these persons with disabilities या specially able people, या हम इनको दिव्यांगजन कहते हैं,
right? So because they are probably blind, they are deaf, they cannot use their fingers to write, तो यहाँ पे इनके लिए बहुत दिक्कत होती है टू एक्चुअली फुलफिल द प्रोसीजर फॉर KYC। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया कि दिस शुड बी मेड एक्सेसिबल अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 21। ये एक्सेसिबल होना चाहिए बिकॉज दे हैव द राइट टू डिजिटल एक्सेस। सो लेट्स अंडरस्टैंड द होल केस नाउ। सो वी जस्ट डिस्कस्ड कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 30 के रूलिंग में कहा था कि KYC norms should be made easier especially for the persons with disabilities. If we talk about persons with disabilities, हमारे legal provisions क्या है उनको better life provide करने के लिए? Firstly, हमारा संविधान ही कहता है, given in the preamble, fundamental rights, given in even DPSP, when we talk about right to equality, they have the right to life and liberty, है ना? So इसमें हम देखते हैं they have legal safeguards under the constitution as well as under the convention, the UN convention for the rights of persons with disabilities। तो ये UN वाला है, तो international agreements में भी ये mandate करता है कि इनको equal rights मिले, इनको accessibility मिले, easy access मिले to various services। Further, we have made our own law in India, ये 2016 में बना था, called as the Rights of Persons with Disabilities Act। ओके 2016 में ये एक्ट आया था टू फॉलो अ सोशल बैरियर अप्रोच। ना व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यहाँ पे ये कहता है कि जो बैरियर होता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ फिजिकल बैरियर, ओके, इट इज विद रिगार्ड टू मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, राइट, सोशल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। सो इन दैट केस इट शुड बी लाइक एन ओवरऑल अप्रोच टू इट। सेक्शन 42 इस पर्टिकुलर एक्ट में मैंडेट करता है कि जो भी मीडिया और डिवाइसेस हैं, जो ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, ऑडियो मीडियम में होता है, प्रिंट मीडियम में होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में होता है, दिस शुड बी मेड एक्सेसिबल, राइट, दैट इज सेट बाय सेक्शन 42। तो ये जो हम कह रहे हैं कि KYC नॉर्म शुड बी इजियर, राइट, वी कैन फाइंड कि यहाँ पे हमारे पास कुछ लीगल प्रोविजंस है दैट नीड टू बी फॉलोड, दैट नीड टू बी पुट into use or put into practice so that we see इनको उनके rights मिले। Now is KYC mandatory? क्या ये follow होना ही चाहिए? The answer is yes. And this is according to different act articles जैसे कि Prevention of Money Laundering Act 2002 and as given in 2005 के rules में। एंड ये क्यों नेसेसरी है, एज आई सेड, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है, दे कैन बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे लॉन्डर करने के लिए टू डिफरेंट कंट्रीज। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर बैंकिंग, टेलीकॉम, पेंशंस, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए भी। अगर आपको कोई स्कीम में मिलना है, कोई पैसे मिलने हैं, देन यू नीड टू डू योर KYC। तो इस सेक्टर्स में नेसेसरी है, और अगर ये PWD सेक्टर आर नॉट एबल टू डू KYC, दे आर गोइंग टू मिस ऑन ऑल ऑफ दीज बेनिफिट्स ऑन ऑल ऑफ दीज सेक्टर्स। सो यहाँ पे RBI के 2016 में KYC मास्टर डायरेक्शन में बताया भी है कि ये वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। Clear? So this is where we understand the KYC is mandatory. But what are the challenges that the PWD face? यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेशली अगर हम एसिड अटैक विक्टिम्स की बात करते हैं, राइट, सो सम ऑफ देम आर पार्शियली ब्लाइंड और ब्लाइंड फ्रॉम द वन साइड, तो वो कैसे अपना बायोमेट्रिक्स कर पाएंगे, और हाउ कैन दे यूज देयर फिंगरप्रिंट्स फॉर व्हेन दे से कि आपको 4 के फिंगर्स रखने हैं इन द द स्कैनर, तो ये सब वो कैसे कर पाएंगे, राइट, या अगर कैप्चा होता है दैट यू हैव टू राइट जो भी नंबर दिया है, बट सम पीपल कांट रीड, then how are they going to perform or complete the process? तो ये सब challenges होता है when you talk about digital KYC, even when you want to get PAN card or when you want to get Aadhaar, तो यहाँ पे भी ये दिक्कत होती है। So that is where we see that thumb impressions जिसका इस्तेमाल होता है, Aadhaar biometrics का इस्तेमाल होता है, and therefore it is very difficult for them to get the KYC done. नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कैसे इंटरवीन किया। केस का नाम याद रखना है सबको, राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2024 का केस है, जहां पे बोला है कि राइट टू एक्सेस या एक्सेसिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है, दैट इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट्स
के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है? कैन यू टेल मी व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डिड वी टेक और इम्बाइब द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम? प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कमिंग टू बैक टू दिस, डिजिटल एक्सक्लूजन जो है, इट इज अ वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, या डिसेबिलिटी लॉ के खिलाफ आता है. यू कैन नॉट एक्सक्लूड समवन डिजिटली, ये भी सुप्रीम कोर्ट कहता है. सो यहाँ पे जो KYC नॉर्म्स होने चाहिए ये रिवाइज होने चाहिए, राइट? इसको अपडेट करना चाहिए ताकि एवरीवन कैन एक्सेस इट, कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड नॉट जस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बट इवन द रूरल, द एल्डरली, द पुअर, द पीपल विद माइनॉरिटीज एंड सो ऑन. ये दूसरे आर्टिकल्स भी मेंशन करता है, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 21, 38, ताकि डिजिटल एक्सेस मिले, एंड दैट इज crucial to leading a good life when you talk about right to life and liberty, right? So 14, 15 equality के बारे में, 38 talks is a DPSP which talks about welfare of the people. तो ये सब अगर हमको प्राप्त होना है, the basics is required कि तुम रिवाइज करो KYC norms. So that is all with regard to this article. Let's proceed to the next article. अगला जो आर्टिकल है इज विद रिगार्ड टू नोटा. नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव. वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेसिक टर्म. नोटा क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, कहां पे यूज होता है, ये सब डिस्कस करेंगे. सो नन ऑफ द अबव या नोटा ये इंट्रोड्यूस किया था इंडियन इलेक्शंस में 2013 में. It started with 5 elections from Chhattisgarh, then we have Delhi, we have Mizoram and Rajasthan as well as Madhya Pradesh. ठीक है, तो इन 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में नोटा का इस्तेमाल होता है. नोटा क्या है? मान लो दिस इज माई EVM, यहाँ पे 4 नाम है पर, और एक नीचे भी एक ऑप्शन है कॉल्ड एज नोटा. ठीक है, सो नोटा में क्या होता है, if you don't like any of the above candidates, if you are not agreeing because you don't like उनका कोई criminal background है, पढ़े लिखे नहीं हैं, या इनके पास experience नहीं है, whatever the matter be, आपको बाकी के कैंडिडेट्स पसंद नहीं है, then you have another last option called as nota which is none of the above, कि तुमको कोई भी जो कैंडिडेट है पसंद नहीं है. इट इज बेसिकली गिविंग यू द राइट टू रिजेक्ट. इट इज गिविंग यू द राइट टू रिजेक्ट. तो ये जो नोटा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इलेक्शंस, इन द स्टेट इलेक्शंस, एंड फाइनली 2014 में हमारी लोकसभा में या जनरल इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल स्टार्ट हुआ. नाउ व्हाट हैपेंस अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट मिले? Okay, what happens if Nota gets the highest number of votes? इसका क्या मतलब है? कोई भी कैंडिडेट नहीं बनेगा? The answer is no. सेकंड जिसको मिला है, सेकंड हाईएस्ट वोट्स जिसको मिला है, वो कैंडिडेट बनेगा. ओके, सो दैट इज द केस विद रिगार्ड टू नोटा. तो बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, एंड इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स लाइक हरियाणा, लाइक महाराष्ट्र, एज वेल एज पुडुचेरी, इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ने क्या किया है, नोटा को डिक्लेयर किया है एज अ फिक्शनल इलेक्टरल कैंडिडेट, एज अ फिक्शनल इलेक्टरल कैंडिडेट. इसका मतलब क्या है? मतलब कि अगर स्टेट इलेक्शंस में नोटा गेट्स हाईएस्ट वोट्स तो वापस से इलेक्शंस वहां पे कंडक्ट करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस से इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे. So that is what is done in these states, not done in all states, not done in general elections. So ये नोटा अभी हम देखते हैं कि this was because of PIL that was introduced by the People's Union for Civil Liberties. इन्होंने ये introduce किया था, and finally we see that this was introduced in the elections ताकि वोटर्स को अलाउ कर सके रिजेक्ट करना कैंडिडेट्स एंड मेंटेनिंग देयर सीक्रेसी व्हाइल वोटिंग, कि उनको पसंद नहीं है और वो वोटिंग में ही के थ्रू वो अपना बता सकते हैं, अपना व्यू बता सकते हैं. So now let's understand what is now the case that we have. We have seen कि अगर नोटा को हाईएस्ट वोट मिला तो सेकेंड पर्सन becomes the winner. Right, second person becomes a winner. Now imagine सिर्फ एक ही कैंडिडेट है. Now if एक कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट है और दूसरा नोटा है, अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले
ऑटोमेटिकली हु बिकम्स द विनर? ऑब्वियसली जो एक कैंडिडेट था उसको ही मिलेगा, वो ही बन जाएगा। बट सहमति है कि लोगों में एक ये है कि दे डोंट वांट दिस कैंडिडेट टू बिकम, राइट? सो इन दैट केस देयर शुड बी री इलेक्शंस और समथिंग। तो वही डिमांड कर रहा है एक और PIL, जिसका नाम है विधि सेंटर। PIL इज गिवन बाय द विधि सेंटर। तो इन्होंने कहा कि दिस नोटा जो है, okay, it wants to make it a mandatory option even in elections with only one candidate. Okay, that is what the Vidhi Center is saying. So यहाँ पे नोटा जो है अभी तक हम देखते हैं it has received a very low vote शेयर। ओके, अगर हम पूरे कंट्री की बात करें, इट्स हैज 1% इन लोकसभा, सो इसका शेयर बहुत कम है। एंड स्पेसिफिकली ये ऐसा देखा जाता है दैट व्हेनेवर नोटा इज एन ऑप्शन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी स्टेट, इन एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, यू विल फाइंड दैट नोटा को सबसे ज्यादा यहाँ पे वोट शेयर मिलता है। सो दैट इज मे बी पीपल आर वेरी क्यूरियस टू नो कि ये नोटा क्या है, तो ये दबाते हैं। बट यू ऑलवेज सी दैट इट टेंड्स टू बी हायर जब वो पहले इलेक्शन में कभी इंट्रोड्यूस होता है। सबसे ज्यादा अगर हम इलेक्शंस की बात करें, नोटा इज यूज्ड इन बिहार एंड इट हैज बीन यूज्ड इन गुजरात। So that is what we have seen if we see the previous this. Now election commission का stand क्या है इसमें, वो क्या करेगा in that case? Okay, so whereas विधि सेंटर says कि सभी इलेक्शंस में होना चाहिए नोटा, whereas इलेक्शन कमिश्नर का stand यही है कि you should oppose compulsory नोटा in single stand candidate constituency. अगर कैंडिडेट एक है तो नोटा का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, वही we should have that particular aspect. एंड नोटा अगर इम्प्लीमेंट करें, ये रेयर केसेस में ही होता है कि नोटा को सबसे ज्यादा मिलता है। नॉर्मली कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड एंड हमको बहुत सारी चेंजेस भी करने होंगे, एक्ट में चेंजेस करने होंगे, रूल्स में चेंजेस करने होंगे, तो ये सब ईसी कहता है। बट इसका भी क्रिटिसिज्म है, कि इवन दो इट्स रेयर अकरेंस है ना, दिस शुड नॉट प्रिवेंट कि वोटर को ऑप्शन ना हो। तो इवन इफ इट्स रेयर वी शुड गेट वोटर्स राइट्स, ताकि वो अपने डेमोक्रेसी फुलफिल कर पाए। सो अगर हम लार्ज स्केल इलेक्शंस देख रहे हैं, ईसी इतना केपेबल है, तो ये तो चेंजेस तो मामूली सा है, चेंजेस इन द एक्ट एंड द रूल्स, तो ये एक क्रिटिसिज्म भी दिया गया है इलेक्शन कमीशन के जवाब के। सो दिस इज द होल एस्पेक्ट विद रिगार्ड टू नोटा। शुड नोटा बी इंक्लूडेड इन ऑल इलेक्शंस कंपल्सरीली? करंटली वी सी कि राज्यसभा इलेक्शंस में ये नहीं होता, राइट? सो यहाँ पे वी ऑल्सो सी कि क्या इसमें भी ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सो हियर आई विल बी आस्किंग यू कि इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है इसरो के बारे में, जो सून एक लॉन्च करने वाला है संडे के दिन। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस न्यू मिशन। इसरो का 101 मिशन है, ये 101st मिशन। 100th मिशन जो है इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। नेविगेशन NVS जिसमें हम देखा था, राइट, NVS-02 नेविक का ये पार्ट था, बट इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। लेकिन अभी 101st मिशन होगा। सो व्हाट इज दिस मिशन अबाउट? ये मिशन है EOS। EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये EOS मिशन जो है कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होगा? PSLV C61। PSLV जो है 4 स्टेजेस का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेजेस। तो ये EOS-09 को कैरी करेगा इन द एयर। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं ये कहां पे लॉन्च होगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ना सतीश धवन स्पेस सेंटर इज अ लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ आवर इसरो के लॉन्चेस। EOS या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज बेसिकली ऑब्जर्विंग द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस। तो ये क्या हेल्प करेगा? इट विल एनहांस इंडियाज ऑल वेदर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। वो चेक करेगा विद रिगार्ड टू सेंसर्स होंगे, इसमें पेलोड्स होंगे, विच विल हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू वेदर, विद रिगार्ड टू इमेजेस ऑफ अर्थ सर्फेस बोथ डे एंड नाइट। तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग में क्या होता है? तुम अर्थ को ऑब्जर्व करोगे, उसकी क्लाइमेट को ऑब्जर्व करोगे, उसके इमेजेस को जनरेट करोगे, एंड दैट्स हाउ इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर डेटा। इनके अलावा एक मीटिंग भी हो रहा है इसरो और जापान के स्पेस एजेंसी के साथ। व्हाट इज दिस एजेंसी? व्हाट इज दिस अबाउट? लेट्स अंडरस्टैंड। दिस इज कॉल्ड एज चंद्रयान 5 मिशन।
तो इसके रिलेटेड यहाँ पे एक मीटिंग हो रहा है एंड दैट इज हेल्ड बिटवीन May 13th and 14th. It was held on May 15th at the headquarters of ISRO. और headquarters कहाँ पे है? बेंगलुरु में. Okay, who is the chairperson of ISRO? Please write that in the comment section. बहुत बार मैंने डिस्कस किया है. The chairman of ISRO आपको लिखना है. Now, ISRO और जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA, JAXA, एंड मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है. सो जो मिशन है चंद्रयान 5, इसका हमने दूसरा मिशन का नाम दिया है ल्यूपेक्स. ठीक है, एक जॉइंट लूनार मिशन है. किसका? जापान का स्पेस एजेंसी और इसरो, इंडिया की स्पेस एजेंसी यानी इसरो. तो ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव होगा? इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वो एक्सप्लोर करेंगे volatile materials including water in the lunar surface that is near the south pole. तो मून पे कोई volatile material है या पानी है, ये वेरीफाई, ये चेक करेगा. अभी तक हम देखते हैं 1, 2, 3 मिशन हो गए हैं. The fourth one is going to happen, which is going to be when India will take the first lunar sample बैक टू दी अर्थ. जो मून से कुछ सैंपल्स उठा के ये इंडिया में लेके आएंगे या अर्थ में लेके आएंगे. ये तो चाइना ने भी रिसेंटली किया है. ओके, चैंगी मिशन में. वैसे ही इंडिया का है चंद्रयान मिशन, राइट. यहाँ पे इट विल बी टारगेटिंग द परमानेंटली शैडोड रीजन, दैट इज द डार्क रीजन इन द साउथ पोल. यहाँ से ये टारगेट करेंगे. सो लॉन्च के बारे में हम देखते हैं कि चंद्रयान 5 का जो मिशन है कहाँ, कैसे, कब लॉन्च होगा. दिस विल बी लॉन्च्ड ऑन जापान का लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है H324L. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो चंद्रयान मिशन विल नॉट बी लॉन्च बाय अस, इट विल बी लॉन्च बाय जापानीज के लॉन्च व्हीकल से. इसरो बिल्ड करेगी लैंडर. ओके, लूनार का जो लैंड करने वाला जो है व्हीकल, ये इसरो लॉन्च करेगी. इसके अलावा MH1, दैट इज MHI, दिस इज मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री, जापान की कंपनी है. ये लूनार रोवर बनाएंगी, द वन दैट मूव्स ऑन द लूनार सरफेस. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे, अलग अलग चीजें जो होती हैं इस मिशन में, दैट विल बी ऑल्सो सोर्स्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज, कंट्रीब्यूटेड बाय कंट्रीज लाइक इसरो, JAXA, ESA एंड NASA, यानी कि इंडिया, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एज वेल एज US की स्पेस एजेंसी यहाँ से कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे. एंड ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स विल हेल्प अस टू एनालाइज एंड टू एक्सप्लोर लूनार में जो वॉलेटाइल मटीरियल्स है इसके बारे में हमको जानकारी दे देगी. तो ये पूरा आपने मिशन देखा with regard to LUPEX of the Chandrayaan 5 as well as about the Earth Observation Satellite 09 mission. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं. ट्रंप जो है, okay, there's not a single day when we don't discuss about Trump, don't we? So now let's see what exactly ये कहता है. यहाँ पे ट्रंप नाराज है, उदास है, इज फ्राउनिंग ऑन एप्पल पुश टू मेक इन इंडिया. यानी कि जो एप्पल है, ओके, एप्पल के CEO का नाम क्या है? इट इज टिम कुक. ओके, टिम कुक. सो एप्पल के CEO ने कहा था कि हम ये इंडिया में आएंगे और इंडिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे. ओके, सो व्हाई इज ही डूइंग दैट? बिकॉज ग्रेजुअली वो चाइना से अपना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रखना चाहता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स यूजिंग इंडिया एज वेल. एंड इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी है, स्कीम्स भी है, जैसे कि PLI. तो लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स लेके दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट बेटर एंड प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाएंगे ऑफ द एप्पल प्रोडक्ट्स, राइट. तो इंडिया खुश है कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हम डेवलपमेंट करेंगे, राइट. और चाइना से वो कम कर रहे हैं, इंडिया में ज्यादा करेंगे. ऑल ऑफ दैट इज मेकिंग इंडिया हैप्पी. बट यहाँ पे किसको नाराजगी है? वी हैव ट्रम्प हु सेज कि ये जो कर रहे हैं एप्पल, मत करो. ही इज टेलिंग टिम कुक कि तुम ये मत करो, ठीक है, अनलेस कि वो जो प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के मार्केट के लिए इस्तेमाल होगा तो ठीक है, बट US के प्रोडक्ट्स के लिए यू डोंट आस्क इंडिया टू मेक द प्रोडक्ट्स, बिकॉज नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे टैरिफ्स और सब होंगे. सो दैट इज व्हाट इट फियर्स ऑन. एंड इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेसिफिकली इन द टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना. वी कैन प्ले अ बेटर रोल इन दिस. तो ये पूरा आर्टिकल हम देखते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो ट्रम्प है, द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज इन टॉक्स विद द यूएई प्रेसिडेंट जिनका नाम है मोहम्मद बिन सैयद अल नयन। तो ये यूएई प्रेसिडेंट और इनके टॉक्स हुए हैं अबू धाबी में, दैट वाज yesterday. Clear? Let's proceed to the next and the last article of the day, and this is with regard to the Rohingya crisis. तो यहाँ पे UN ने एक इंक्वायरी लॉन्च किया है, ओके, इंक्वायरी लॉन्च किया है with regard to what? कि एक वेसल में, इंडियन नेवल वेसल में रोहिंग्यास थे और इनको ऑफ बोर्ड किया, उनको फोर्स किया गया कि ऑफ बोर्ड हो इन द अंडमान सीज। ये एक रिपोर्ट, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में सब ये पता चला है। सो ये इस पे इंक्वायरी अभी किसने स्टार्ट की है? यूनाइटेड नेशंस ने स्टार्ट की है। सो यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन है कि रोहिंग्यास कौन है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोहिंग्या क्राइसिस और द रोहिंग्या इशू। रोहिंग्यास जो है, these are migrants, okay, these are people mainly originally from Myanmar, और यहाँ पे म्यांमार में they have been facing a lot of discrimination, a lot of violence, a lot of persecution, तो जिसकी वजह से they have been moving out of this region. Rohingyas, they are not recognized as an official ethnic group, इनको सिटीजनशिप भी नहीं दिया गया सिंस 1982 एंड 2017 में बहुत बड़े अमाउंट में एक्सोडस, यानी कि दे हैव मूव्ड फ्रॉम द कंट्री एंड दे हैव ट्रांसफर्ड टू वेरियस नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, लाइक थाईलैंड, लाइक इंडिया, ओके, एंड सो ऑन। अभी सबसे ज्यादा इनका पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश के कोक्स बाजार में है, ठीक है? कोक्स बाजार होस्ट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द रोहिंग्यास। सो दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेटलेस पॉपुलेशन, इनको सिटीजनशिप भी नहीं मिल रहा। एंड अर्ली 1990s में हम देखते हैं रोहिंग्यास स्लोली हैव बीन फ्लेडिंग अवे फ्रॉम म्यांमार। तो 2017 में भारी मात्रा से दे हैव लेफ्ट बिकॉज वायलेंस ब्रोक आउट इन द रखाइन स्टेट। नाउ रखाइन स्टेट या द रखाइन प्रोविंस इज द रीजन वेयर यू फाइंड मोस्ट नंबर ऑफ रोहिंग्यास। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रखाइन स्टेट, एंड इट इज 7,42,000 पीपल दैट वी आर सीइंग। Now इंडिया में भी हम देखते हैं they had not been they were treated as refugees but they did not get much of benefits because जो neighboring states हैं या जो north eastern states हैं they found it difficult to give them protection while coping with their own problems. तो यहाँ पे India has been accused of ट्रीटिंग देम नॉट करेक्टली। यहाँ पे एक रिपोर्ट आया है कि इंडिया ने कुछ अपने वेसल से, इंडियन नेवल वेसल से इनको फोर्स किया है आउट ऑफ द शिप। सो इस पे अभी इंक्वायरी चलेगी और कौन इसको हेड कर रहा है? द पर्सन दैट इज टॉम एंड्रूज। ये यूएन स्पेशल रिपोर्टर है और ये पूरे सिचुएशन, ह्यूमन राइट सिचुएशन को ये चेक करके वी विल देन गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। तो ये पूरा आर्टिकल हम देखा है हमने रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में, एंड दैट्स ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल, जहां पे वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं 20 जीके क्वेश्चंस आज के ही करंट अफेयर्स से डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।